Yes. Now we will discuss how to calculate mode in case of continuous series. So here is data given of the continuous series. Class intervals are given and frequencies are given here. So I am writing here class intervals and frequencies 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Frequencies I have written there. Now how to calculate mode in this series. Now at a glance, एकदम देखने से हमें क्या पता चलता है. So this we are doing inspection method. Inspection method means हमने इंस्पेक्ट करना है फ्रीक्वेंसी को कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है. So 7 is the highest frequency in this data. So 7 will be F1. 7 के प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी जो है 5, इसको हम लेंगे F0 और 7 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी 5, इसको हम लेंगे F2. जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इट इज़ 7 और क्लास इंटरवल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 20 to 30. So it means value of mode will lie in this class interval 20 to 30 where L1 will be the upper limit 20. Yes, now we will apply these values in the formula. What is the formula of calculating mode in case of continuous series? So first of all you will write this. A glance at the series shows that highest frequency is 7. So corresponding modal class is 20 to 30 in which value of the mode lies. So this is the formula. Z equal to Z means mode equal to L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 into minus F2 into I. Now L1 is 20, lower class limit इसकी. F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलेंगे. F1 इज 7, हम यहाँ पर ले चुके हैं. F1 7 और F1 के पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5. दैट मीन्स F0 इज 5 एंड F2 F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी हायर के बाद वाली 5 है. दैट मीन्स F2 इज 5 एंड I इज द डिफरेंस ऑफ द क्लास लिमिट. सो डिफरेंस ऑफ द क्लास लिमिट कौन सी क्लास इंटरवल हमने लिए 20 to 30 का. 30 minus 20 is 10. Now putting all these values in this formula, Z equal to 20 plus F1 minus F0, 7 minus 5 आ गया. Then 2F1, 2 into 7 minus F0. F0 is 5, F2 is also 5 into I is 10. Now by calculating this, we arrive at this value. Z will be 25. I hope this it is clear to you. The next method is grouping method. Again I am repeating the same method in how to solve in the continuous series. Method is anyhow same to a great extent. Now again we will I am doing the same question by grouping table. We will have to prepare two tables, grouping table and then analysis table. First of all we will prepare grouping table. So I have written vertically class intervals and frequencies same way 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and frequencies here oppositely. Again we will make 6 columns here. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Remember one thing, column will start from the frequency column. Column of frequency will be first column. Then second column, again same rule, 1 plus 2. Third column, 2 plus 3. Fourth column, 1 plus 2 plus 3. Fifth column, पहली आइटम छोड़ देंगे, second plus third plus fourth. देन 6 कॉलम 3 पहली 2 आइटम छोड़ के 3 plus 4 plus 5 किनको ऐड हमने करना है फ्रीक्वेंसीज को. नाउ फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज हमारे पास बना बनाई है क्वेश्चन में. सेकंड कॉलम से हम काम करना शुरू करेंगे. सेकंड कॉलम में हमने लिया
फर्स्ट और सेकंड मीन्स फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी का टोटल, दैट मीन्स 2 और 5। ये पहली दो फ्रीक्वेंसीज हैं, 2 + 5 7 ले ली हमने, 2 का ग्रुप बना लिया। देन उसके बाद नेक्स्ट 2 का ग्रुप, 7 + 5 12। अब एक अकेली रह गई 2, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें 2 का ग्रुप चाहिए फर्स्ट कॉलम में, सॉरी सेकंड कॉलम में, तो वी विल इग्नोर दिस। देन थर्ड कॉलम में हमने पहली फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर देना है। उसके बाद हमने 2-2 का ग्रुप बना के, सेकंड से हमने स्टार्ट करना है ग्रुप बनाना, अभी 2-2 का ग्रुप बनाते चले जाना है। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ दी, अगली दो फ्रीक्वेंसीज हैं 5 और 7। 5 और 7 का हमने टोटल ले लिया, 5 + 7 = 12। देन 5 + 2 = 7। ये दो फ्रीक्वेंसी ले ली, अगली दो बिल्कुल साथ साथ वाली हमने उठा लेनी है, अब कोई फ्रीक्वेंसी बची नहीं है इसके बाद। देन फोर्थ कॉलम में फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसीज का ग्रुप, फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसीज आ गई आपकी 2, 5 और 7। ये 3 का ग्रुप बन गया, यहाँ पर तीनों हमने शो कर दी, 2, 5 और 7। ये तीनों हमने ले ली, 2 + 5 + 7 = 14। अब यहाँ तक हम काउंट कर चुके हैं। अब आगे हमें 3 फ्रीक्वेंसीज चाहिए, बट इक्वेशन में तो 2 बची हैं, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, इग्नोर, क्योंकि हमें इस कॉलम के अकॉर्डिंग हमें 3 का ग्रुप चाहिए। देन फिफ्थ कॉलम में हम पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, अगली 3 उठाएंगे, सेकंड से स्टार्ट करेंगे। पहली हमने 2 वाली स्किप कर दी। नेक्स्ट 3 कौन सी है, 5, 7 और 5। हमने इन तीनों का इधर टोटल ले लिया, 5 + 7 + 5 = 17। अब हमने यहाँ तक 5 तक काउंट कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी बची है, लेकिन हमें तो 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 की ग्रुपिंग है, तो हमने इसको इग्नोर कर देना है। देन सिक्स्थ कॉलम में 3 + 4 + 5 इस पहली 2 फ्रीक्वेंसीज हमने छोड़ देनी है, और थर्ड से हमने स्टार्ट करना है। ये पहली हमने 2 छोड़ दी, थर्ड फ्रीक्वेंसी आ गई 7। 3 की ग्रुपिंग हमने करनी है, तो हमने तीनों कॉन्टिन्यूसली उठा ली, 7, 5 और 2। इन तीनों का हमने टोटल यहाँ पर कर लिया, 7 + 5 + 2 कम्स टू बी 14। अब हम सर्कल लगा देंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में हाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। सेकंड कॉलम में हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, 12। थर्ड कॉलम में 2 आई हैं फ्रीक्वेंसी, 12 और 7। हाईएस्ट कौन सी है, 12। फोर्थ में तो है ही एक, तो वो अपने आप में ही बड़ी है, 14। फिफ्थ में एक है तो हम उसी को ले लेंगे, 17। सिक्स्थ कॉलम में हमने 14 को ले लिया। नाउ सेम वे हमने अब एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करना है। जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पर x मार्क्स लिख लिए थे, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल्स एज इट इज हमने ऊपर से ले लिए। कॉलम हम यहाँ पर पूरे ही बनाएंगे, 6 हमने कॉलम बनाए थे, तो 6 हमने यहाँ पर बना दिए और टोटल। अब सेम वे हमने यहाँ पर देखते जाना है कॉलम वाइज। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी फर्स्ट कॉलम में 7 हाईएस्ट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल हमने पिक करने हैं और उसके सामने टिक मार्क लगाते जाना है। 7 के ऑपोजिट क्लास इंटरवल क्या है, 20 to 30। फर्स्ट कॉलम को हम रीड कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम में हम आगे यहाँ पे 20 to 30 के सामने हमने टिक मार्क लगा दिया। नाउ वी विल रीड वैल्यूज ऑफ सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 12, किसको ऐड करके आई है, 7 और 5 को। 7 और 5 के ऑपोजिट क्लास इंटरवल कौन से हैं, ये दोनों, 20 to 30, 30 to 40। सेकंड कॉलम की हम बात कर रहे थे, तो सेकंड कॉलम में जाएंगे एनालिसिस टेबल में, 2 इंटरवल हमने चूज करे हैं, 20 to 30 के सामने टिक मार्क लगा दिया और 30 to 40 के सामने हमने टिक मार्क लगा दिया। नाउ थर्ड कॉलम हमने 2 फ्रीक्वेंसीज ऐड की हैं इसमें, 5 और 7। 5 और 7 के ऑपोजिट इंटरवल्स हम चूज करेंगे, 10 to 20, 20 to 30। थर्ड कॉलम की हम बात कर रहे थे, तो थर्ड कॉलम में हमने 2 फ्रीक्वेंसीज हमने ये चूज कर लिए, इंटरवल्स 10 to 20 एंड 20 to 30। देन फोर्थ कॉलम में हमने 3 को ऐड किया, 2, 5 एंड 7।
2, 5 एंड 7 ये रहे हमारे, इसके ऑपोजिट इंटरवल्स हैं हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो फोर्थ कॉलम में हमारे पास 0 to 10 के सामने हमने टिक मार्क लगा दिया, 10 to 20 के सामने लगा दिया, 20 to 30 के सामने हमने टिक मार्क लगा दिया। नाउ वी विल रीड वैल्यूज ऑफ फिफ्थ किसको ऐड करके आया, 5, 7 और 5 को। 5, 7, 5 हमारा ये रहा। 5, 7, 5 के ऑपोजिट हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये तीनों इंटरवल्स और कॉलम नंबर हम बात कर रहे थे कौन सी, ये हमने फिफ्थ स्टडी किया था। तो फिफ्थ के हमने इंटरवल चूज कर लिए 10 to 20 के ऑपोजिट, ये हमने 3 इंटरवल चूज किए थे, इसके ऑपोजिट हमने टिक मार्क लगा दिया 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। देन सिक्स्थ कॉलम, लास्ट कॉलम, कौन सी फ्रीक्वेंसी हमने ऐड की थी, 752 फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जाएंगे हम। 752 हमने ये 3 इंटरवल इसके सामने वाले हैं 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये 3 इंटरवल्स हमने सिक्स्थ कॉलम में 20 to 30 के ऑपोजिट टिक मार्क लगा दिया, 30 to 40 के ऑपोजिट टिक मार्क लगा दिया, 40 to 50 के ऑपोजिट हमने टिक मार्क लगा दिया। अब हमने इसका टोटल करना है टिक मार्क्स का इंटरवल वाइज। 0 to 10 में हमारे पास एक टिक मार्क है 1, 10 to 20 में 3 टिक मार्क्स हैं, टोटल इज 3, 20 to 30 में हमारे पास 6 टिक मार्क्स हैं, तो टोटल इज 6, 30 to 40 में हमारे पास 3 टिक मार्क्स हैं, तो टोटल विल बी 3, 40 to 50 में 1 टिक मार्क है, टोटल विल बी 1। सो एनालिसिस टेबल से हम वैल्यूज रीड करेंगे। हाईएस्ट वैल्यू है जो हमारी कौन सी आती है, 6 के ऑपोजिट क्लास इंटरवल है हमारे पास 20 to 30, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ मोड लाइज इन 20 to 30। तो 20 to 30 में हमारी वैल्यू ऑफ मोड लाई करती है। 20 to 30 के ऑपोजिट वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 है, इसको हम F1 बोलेंगे, और 7 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 बोलेंगे, 7 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 बोलेंगे, दैट इज 5। तो जिसमें वैल्यू मोड की लाई करती है दैट इज 20, हम ये हमारा हो जाएगा L1। नाउ फॉर्मूला हमारे पास सेम ही है, इसको भी आप उसी तरह से लिख दोगे। फ्रॉम एनालिसिस टेबल इट इज क्लियर दैट हायर फ्रीक्वेंसी इज 6 एंड कॉरस्पॉन्डिंग मोडर क्लास इज 20 to 30 where the value of mode lies. Now again with same formula हम लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं इसको। Z is equal to L1 plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into I। ये वैल्यूज हम साइड पे हमने लिख ली हैं ताकि हमें पुट करनी इजी रहे। ये सारी वैल्यूज हमने इसमें फिल कर लेनी है। L1 is 20, F1 is 7, F0 is 5 and 2F1 is 2 into F1 is 7 minus F0 is 5 and F2 is again 5 into I is the size of the class interval 10। ये वैल्यू सारी हमने पुट कर दी है। क्वेश्चन सॉल्व करके हमारे पास Z की वैल्यू आ गई 25। सो दिस वाज द ग्रुपिंग मेथड in case of continuous series.